ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਸਿਰਫ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਅਗਨੀ ਜਾਂ ਯੱਗ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀ ਵੈਸ਼ਵਾਨਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਵਾਨਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਦੇਵੀ ਮੂੰਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਪੇਟਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਵਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੱਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦੂਤ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਯੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਟਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਯੱਗ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਦਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੱਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ, ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ। ਯੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਦੇ ਇਲਾਜੀ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੋ। ਅੱਛਾ। ਸਰੋਤ ਯੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ? ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ, ਪਿੱਪਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਰੋਤ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੱਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯੱਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜਨਮਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਪਤੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਪਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਤਾਕਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਤਵੇਦਸ। ਜਾਤਵੇਦਸ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਜਨਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਹਰ ਯੱਗ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤਵ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਯੱਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਲਾਭ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ? ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਰਸਮ, ਯੱਗ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੇ ਯੱਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿल्कुल, इस पे विचार करना बनता। नमस्कार, आज हम अग्नि पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं, प्राचीन वैदिक ऋचाओं से लेकर आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वहां तक। और हम सिर्फ आग या लपटों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि इस एक कॉन्सेप्ट को, अग्नि को, कैसे अनुष्ठान, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। अग्नि जैसे हम अक्सर बस जलने वाली चीज या गर्मी समझते हैं, प्राचीन भारतीय विचार में इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत व्यापक है। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये दिखाते हैं कि अग्नि सिर्फ मतलब ताप या प्रकाश नहीं है, वो एक तरह से एक पुल है, देवताओं तक आपकी बात, आपकी आहुति पहुंचाने वाला। शरीर के अंदर वो जीवन शक्ति है जो पाचन चलाती है, और ऊर्जा का तो वो मूल स्रोत है ही। अच्छा, तो शुरुआत वेदों से करें। ऋग्वेद में तो अग्नि का जिक्र बहुत आता है ना? खासकर यज्ञों में। वहां उसे सिर्फ आग नहीं कहा गया, बल्कि दूतम मतलब देवताओं का दूत, और होत्री यानी पुरोहित भी कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे अग्नि ही वो कड़ी है जो मनुष्यों और देवों को जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल, ये भूमिका बहुत अहम है। अग्नि ही है जो यज्ञ में डाली गई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाती है, ऐसा विश्वास था। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएं हैं जहां धन, सुरक्षा या संतान जैसी इच्छाओं के लिए अग्नि का आवाहन किया जा रहा है। उसे जातवेदस भी कहा गया है। जातवेदस? हाँ, जातवेदस। इसका मतलब है सब कुछ जानने वाला, क्योंकि वो हर यज्ञ में उपस्थित है, वो हर आहुति का साक्षी है एक तरह से। एक और नाम है वैश्वानर। वैश्वानर, जिसका अर्थ है सभी मनुष्यों से संबंधित। ये दिखाता है कि अग्नि सिर्फ कुछ विशेष लोगों या पुरोहितों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये नाम ही अपने आप में कितने मतलब गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। जात वेदस, सब कुछ जानने वाला। और ये भी दिलचस्प बात है, एक ऋचा है शायद 1.3619, जहाँ कहा गया है कि मनु ने मानव जाति के लिए अग्नि को प्रकाश के रूप में स्थापित किया है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ भौतिक रोशनी है या कुछ और? देखिए, शायद सिर्फ भौतिक रोशनी से ज्यादा है। हो सकता है ये ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक हो, या सभ्यता की शुरुआत का। अग्नि का संबंध ऋत से भी जोड़ा गया है। ऋत यानी जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, कॉस्मिक ऑर्डर, वो इंद्र और सोम जैसे दूसरे बड़े देवताओं के साथ मिलकर काम करती है व्यवस्था बनाए रखने में। और हाँ, एक बहुत जरूरी पहलू जो आपने शुरू में इशारा किया था, अग्नि का पावक रूप। पावक, शुद्ध करने वाला। हाँ बिल्कुल, शुद्ध करने वाला। यज्ञ की अग्नि को माना जाता था कि वो नकारात्मकता, अशुद्धियों, बुरी शक्तियों को दूर करती है। ये पावक वाला पहलू काफी रोचक है, और शायद यहीं से हम शरीर के अंदर की अग्नि की तरफ जा सकते हैं। आयुर्वेद में जठराग्नि की बहुत बात होती है, ये क्या है असल में? बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। जैसे बाहर यज्ञ की अग्नि शुद्ध करती है, वैसे ही शरीर के अंदर की ये जठराग्नि हमारे स्वास्थ्य की, हमारी सेहत की बुनियाद है। ये हमारी पाचन अग्नि है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाकर ऊर्जा में बदलने का काम यही करती है। और ये सिर्फ पाचन नहीं, पूरे मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को नियंत्रित करती है। आयुर्वेद का तो ये मूल सिद्धांत है कि ज्यादातर बीमारियां इसी जठराग्नि के कमजोर पड़ने या मंद पड़ने से शुरू होती हैं। अच्छा, मतलब अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो बीमारियां शुरू हो सकती हैं। जी। ये तो आजकल भी बहुत सुनने में आता है। आयुर्वेद इसे कैसे समझाता है? ये कमजोर क्यों पड़ती है? हाँ, देखिए, आयुर्वेद कहता है कि जब जठराग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं है, और उससे बनता है आम। आम मतलब अधपचा भोजन कह लीजिए, या मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कह सकते हैं आजकल की भाषा में। यही आम जब शरीर में जमा होने लगता है तो वो अलग अलग चैनल्स को ब्लॉक करता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, रोगः सर्वे भी मंदेग्नौ, मतलब ज्यादातर रोग मंद अग्नि के कारण होते हैं, और जिसकी अग्नि बलवान है वो निरोगी रहता है। यही जठराग्नि शरीर की बाकी अग्नियों को भी शक्ति देती है, जैसे भूताग्नि है जो 5 तत्वों को प्रोसेस करती है, या धात्वाग्नि है जो टिश्यूज बनाती है। और क्या चीजें हैं जो इस महत्वपूर्ण जठराग्नि को कमजोर करती हैं? मतलब स्रोतों में क्या बताया गया है? हाँ, बिल्कुल बताया गया है। आयुर्वेद 2 चीजों पर जोर देता है, आहार और विहार, यानी आपका खान पान और आपकी जीवन शैली। आहार में गड़बड़ी, जैसे बहुत ज्यादा खा लेना, या बिना भूख के खाना, या असमय खाना, या फिर विरुद्ध आसन, मतलब ऐसी चीजें एक साथ खाना जो कंपैटिबल नहीं है, जैसे दूध और मछली, ये सब अग्नि को मंद करते हैं। अच्छा। और इसी तरह विहार यानी लाइफस्टाइल, जैसे दिन में सोना, या जो शरीर के प्राकृतिक वेग हैं जैसे मलमूत्र, इनको रोकना, या फिर अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेना,
ये सब चीजें भी पाचन अग्नि पर बुरा असर डालती हैं। तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं, पूरी लाइफस्टाइल की बात हो गई। अब अगर हम वापस वो पावक वाले पहलू पर जाएं, शुद्धि वाले पर, तो यज्ञ में जो अग्नि का इस्तेमाल होता था वो सिर्फ देवताओं तक आहुति पहुंचाने के लिए था या शुद्धि का भी पहलू था उसमें? नहीं, दोनों थे, बल्कि शुद्धि का पहलू बहुत मजबूत था। एक स्रोत बताता है कि यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें मंत्रों के साथ खास जड़ी बूटियां, घी और दूसरी सुगंधित चीजें अग्नि में डाली जाती हैं, उससे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिसे उस स्रोत में जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी कहा गया है। इस सीधे सीधे अग्नि के पावक रूप से जुड़ता है। नकारात्मक शक्तियों या जिन्हें राक्षस कहा गया, उनको दूर करना और माहौल को शुद्ध करना। और हाँ, अग्नि तेजस का भी प्रतीक है। तेजस यानी चमक, दीप्ति, एक तरह की आंतरिक और बाहरी ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी। कमाल है। तो मतलब अग्नि सिर्फ वो आग की लपटें नहीं है जो हम देखते हैं, ये तो एक मल्टी डायमेंशनल शक्ति है। हमने देखा कैसे वो वेदों में देवताओं की दूत है, यज्ञ का केंद्र है, फिर आयुर्वेद में वो जीवन देने वाली पाचन शक्ति है, स्वास्थ्य की चाबी है, और साथ ही शुद्धि और ऊर्जा का भी प्रतीक है। वैदिक ऋचाओं से लेकर आयुर्वेदिक सिद्धांतों तक ये कॉन्सेप्ट फैला हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सोच जो थी वो बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया को कितना जुड़ा हुआ मानती थी। अग्नि का संतुलन, चाहे वो यज्ञ की वेदी पर हो या हमारे अपने शरीर के अंदर हो, उसे पूरी व्यवस्था के संतुलन, स्वास्थ्य और एक तरह की हार्मोनी, समरसता के लिए जरूरी माना गया। तो हमने अग्नि के इतने सारे रूप देखे, संदेशवाहक, पाचक, शोधक, ये सब जानने के बाद एक ख्याल आ रहा है मन में। हाँ बताइए। अग्नि का जो मूल स्वभाव है वो है परिवर्तन, है ना? भोजन को ऊर्जा में बदलना, आहुति को देवताओं तक पहुंचाना, अशुद्धि को शुद्धि में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हम जीवन के जो दूसरे बड़े परिवर्तन होते हैं या चुनौतियां आती हैं, क्या उनमें भी इस संतुलित अग्नि के सिद्धांत से कुछ सीख सकते हैं? मतलब शायद अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करके हम बदलाव को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाएं, उससे गुजर पाएं। ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। यकीनन सोचने वाली बात है। अग्नि का संतुलन और परिवर्तन का सिद्धांत जीवन पर कैसे लागू हो। From a spark of cosmic dust, a fire was born. But what if I told you this is no ordinary fire? What if this flame is a secret messenger, a divine bridge between our world and the heavens? This is the story of Agni, the god of fire. His name is the very first word in the world's most ancient sacred text, the Rig Veda. He isn't just a deity, he is the mouth of the gods, the cosmic courier who carries our prayers, our hopes, and our offerings straight to the divine realm. Without him, the connection is lost. But every great story has a twist. Imagine the universe holding its breath when this divine messenger was cursed by the powerful sage Bhrigu to become an all-devourer, forced to consume everything in his path, pure or impure. Heartbroken, Agni vanished from the world. Silence fell. Rituals stopped. The gods began to starve. The cosmos was thrown into chaos. It took Lord Brahma himself to intervene, granting Agni a powerful boon, that no matter what he consumed, he would forever remain pure. This is why the fire of a sacred lamp and the fire of a funeral pyre are both seen as purifying forces. Agni's form is as mysterious as his power. He has two faces, one symbolizing creation and life, the other destruction and change. He has 7 fiery tongues, each with a special purpose, delivering different offerings to different gods. But Agni is not just an external force. He is the fire within you. He is the Jetar Agni, the fire in your belly that digests your food and gives you energy. He is the Gyan Agni, the spark of knowledge in your mind that burns away ignorance. When a couple walks around the sacred fire during a wedding, they make Agni their eternal witness, a promise made before a force as old as time itself. Agni is the ultimate symbol of transformation. He shows us that to create something new, something old must be turned to ash. He is the divine purifier, the eternal witness, and the bridge between the seen and the unseen. So the next time you light a candle or see a flame, remember you are looking at a force that connects worlds. If this story sparked your curiosity, share the warmth with your friends and let us know your thoughts in the comments below. Remember to keep your own inner flame burning bright. Until next time, stay curious.
नमस्ते। ज्वालामुखियों के देश से मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम उस शक्ति की कहानी सुनेंगे जो हर कण में है, हर यज्ञ में है और आपके दिल में भी धड़कती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप यज्ञ में आहुति डालते हैं तो वो देवताओं तक कैसे पहुंचती है? कौन है वो रहस्यमयी डाकिया जो इंसानों की प्रार्थनाओं को सीधे स्वर्ग तक ले जाता है? वो कोई और नहीं, वो है अग्नि। आज हम पर्दा उठाएंगे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ज्वाला अग्निदेव के रहस्यों से। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ जलाती नहीं बल्कि जीवन भी देती है, जो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि निर्माण भी करती है। ये कहानी है उस देव की जो देवताओं के मुख है, यज्ञ के प्राण है और हर इंसान के भीतर की ऊर्जा है। सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की शक्तियों से बात करते थे तो उनकी बातचीत का माध्यम कौन था? अग्नि। ऋग्वेद, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ, उसका पहला शब्द, पहला मंत्र अग्नि को ही समर्पित है। अग्निमीड़े पुरोहितम। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो हमारे मुख्य पुरोहित हैं। अग्नि सिर्फ आग नहीं, वो एक पुल है, एक सेतु जो हमें देवताओं से जोड़ता है। वो एक ऐसे दूत हैं जिनकी सच्चाई पर स्वयं देवता भी भरोसा करते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। क्या होगा जब ये पवित्र दूत, यही देवताओं का मुख श्रापित हो जाए? जब महर्षि भृगु के क्रोध की ज्वाला में अग्नि को सर्वभक्षी यानी सब कुछ खा जाने का श्राप मिल जाए? कल्पना कीजिए उस हाहाकार की जब अग्निदेव दुखी होकर अदृश्य हो गए, यज्ञ रुक गए, देवताओं तक भोजन पहुंचना बंद हो गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अग्नि को वरदान दिया कि सब कुछ भस्म करके भी तुम हमेशा पवित्र ही रहोगे। यही कारण है कि चिता की आग भी पवित्र मानी जाती है और यज्ञ की ज्वाला भी। अग्नि का स्वरूप भी किसी रहस्य से कम नहीं। 2 मुख, एक जीवन का प्रतीक, दूसरा अमरता का। 7 जिह्वाएं, काली, कराली, मनोजवा। हर जिह्वा का एक अलग काम, अलग अलग देवताओं तक अलग अलग भोग पहुंचाना। और उनका वाहन मेढ़ा, जो स्वयं यज्ञ और ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि सिर्फ एक बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। हमारे पेट में जठराग्नि बनकर भोजन पचाती है, हमारे मन में ज्ञानाग्नि बनकर अज्ञान को जलाती है। जब एक हिंदू विवाह में जोड़े 7 फेरे लेते हैं तो वो अग्नि को ही साक्षी मानते हैं। ये एक ऐसा गवाह है जिसके सामने बोले गए वचन कभी तोड़े नहीं जा सकते। अग्नि की शक्ति सिर्फ आहुति पहुंचाना नहीं बल्कि शुद्ध करना और रूपांतरित करना है। वो भौतिक को दिव्य में बदल देते हैं। तो अगली बार जब आप एक दिया जलाएं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक लौ नहीं जला रहे, आप ब्रह्मांड की उस आदि शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जो जीवन का सार है। संक्षेप में, अग्नि केवल आग के देवता नहीं है, वे एक दिव्य दूत, एक पवित्र साक्षी, एक शक्तिशाली शोधक और हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद ही सृजन होता है और हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर आपको अग्निदेव की ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम अग्निदेवाय नमः जरूर लिखें। याद रखिए, आपके अंदर भी एक ज्वाला है, उसे कभी बुझने मत देना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।